نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد محترم بزرگوں، میں آج اپنی بات کا آغاز اور شروعات ایک مثال اور ایک ایگزامپل سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہم میں سے تقریباً ہر ایک نے اپنی اسکول میں سائنس کی کتابوں میں ایک بات پڑھی ہے کہ سمندروں میں جب موجیں اٹھتی ہے تو اس کے اندر سے ویپرز یعنی کہ کچھ بخارات اٹھتے ہیں، اور وہ ویپرز اور بخارات اوپر اٹھ کر کے گرمیوں کے موسم میں گرمی کی وجہ سے پگھل جاتے ہیں، ڈسولو ہوتے ہیں، تحلیل ہوتے ہیں، اور پھر پہاڑوں سے جا کر کے ٹکراتے ہیں، جو بادل اٹھتے ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ سمندروں سے پانی کی شکل میں ویپرز تیار ہو کر اوپر اٹھتے ہیں اور گرمی کی وجہ سے وہ ڈیزولو ہو جاتے ہیں، تحلیل ہوتے ہیں، پگھل جاتے ہیں، ان کا وسرجن ہوتا ہے، اور وہ بڑے بڑے اور اونچے پہاڑوں سے جا کر کے ٹکراتے ہیں، اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو جاتی ہے جس کو مانسون کہا جاتا ہے۔ یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ سمندر سے جب یہ چیز اٹھے گی اور گرمیوں میں جب یہ چیز پگھلے گی اور پہاڑوں سے جب یہ ٹکرائے گی تو ٹکرا کر کے وہ پھٹ جاتا ہے، اور بارش کی شکل کے اندر، موسلا دھار بارش کی شکل کے اندر وہ زمین پر گرتا ہے اور پڑتا ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو اپنی چادروں سے روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا۔ کوئی بہت بڑا شامیانہ بنا دے اس کو روکنے کے لیے، اس بارش کو، اس مانسون سے بچنے کے لیے انسان بچنا چاہے تو نہیں بچ سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک انسان کے اندر جب خود غرضی پیدا ہو جاتی ہے اور ہوس پرستی پیدا ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کے اوپر خود غرضی، ہوس پرستی اور بد اخلاقی کا مانسون چھا جاتا ہے، اور پھر اس کو کوئی روکنا چاہے تو روک نہیں سکتا ہے۔ ایک ایگزامپل ہمیں سمجھا رہا ہے کہ آسمانوں سے گرنے والی یہ بارش زمین سے اٹھی تھی، پہاڑوں سے ٹکرائی اور ٹکرا کر کے پھر زمین کے اوپر گر رہی ہے، مگر اہل زمین اپنے اسباب اور اپنی طاقت سے اس کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتے ہیں۔ بس ایسے ہی انسان اتنا خود غرض اور سیلفش بن چکا ہے، مین آف سیلف بن چکا ہے، جس کو بننا چاہیے تھا مین آف ادر، دوسروں کے لیے جینے والا، دوسروں کے لیے اپنے آپ کو کھپانے والا، مگر اس پر خود غرضی کا بھوت سوار ہوا، اور اس کے ساتھ ہوس پرستی، اپنی چاہت پرستی، میں جو چاہوں اسی طرح سے ہو جائے، یہ ہوس پرستی کے جذبات پیدا ہوئے جو اوپر اٹھتے ہیں گویا کے، اور ٹکرا کر کے پھر دوبارہ خود غرضی کے مانسون کے اندر دنیائے انسانیت کے اوپر چھا جاتے ہیں۔ اب کوئی اگر اس ہوس پرستی کو روکنا چاہے اور اس خود غرضی کو روکنا چاہے تو نہیں روک سکتا، اس وجہ سے کہ اس کے دل کے اندر یہ چیز سوار ہو چکی ہے، اس کے دل کے اندر یہ بھاپ بن چکی ہے
یہ اسٹیم تیار ہو چکی ہے، اب کسی انسان کے بس میں نہیں، یہاں تک کہ اس کے خود کے بس میں بھی یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ میں اپنے آپ کو سیلفشی پنے سے باہر نکالنا چاہوں تو نکال لوں، یہ آسانی کے ساتھ انسان نکال نہیں سکتا۔ دوستوں اور بزرگوں، میرے کہنے کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ آج پوری دنیا بگاڑ کی طرف جا ہی نہیں رہی ہے، بلکہ دنیا میں بگاڑ پھیل چکا ہے اور دنیا کے اندر خرابیاں مانسون کی طرح برس رہی ہے اور اسے کوئی روکنے والا روکنا بھی چاہے تو نہیں روک سکتا ہے۔ آپ دیکھیں، دراصل بات یہ تھی کہ ایک انسان کا دل اور ایک ہے انسان کا دماغ۔ انسان کا دماغ کئی زبانیں سیکھتا ہے اور سمجھتا ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے انگریزی میں کوئی بات کریں تو وہ انگریزی جانتا ہے، سمجھ لے گا۔ اگر آپ اس میں فرانسیسی زبان میں بات کرنا چاہے وہ اس زبان کو جانتا ہے، سمجھ لے گا۔ ہندی، سنسکرتی اور گجراتی یا کسی بھی لینگویج میں وہ بات کرے، اگر وہ ان زبانوں کو جانتا ہے تو اچھی طرح سے وہ ان چیزوں کو سمجھ لیتا ہے، مگر ہمارا یہ دل صرف ایک ہی زبان کو جانتا ہے، وہ کسی دوسری زبان کو نہیں جانتا، اور وہ دل یہ جانتا ہے کہ اس کے اندر اللہ آ جائے، بس اس کے علاوہ وہ اور کوئی زبان جانتا ہی نہیں ہے۔ اور بات دراصل یہ ہے کہ انسان جب بھی ان چیزوں سے نمٹنے اور مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتا ہے تو دل سے سوچنے کے بجائے دماغ سے سوچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کا دماغ اس کو خود غرضی کی طرف لے جاتا ہے، اس کا دماغ اس کو ہوس پرستی کی طرف لے جا رہا ہے، اس کا دماغ اس کو خواہشات کی طرف لے جا رہا ہے، اس کا دماغ اس کو دنیا طلبی کی طرف لے جا رہا ہے، ہر طرف اس کو اس کا دماغ لے جا رہا ہے، اس وجہ سے کہ دماغ ہر چیز کو سمجھ رہا ہے مگر دل اس کا صرف ایک ہی چیز کو سمجھ رہا ہے، اور وہی چیز وہ اس کو اپنے پاس نہیں آنے دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو سمجھانے کے لیے الگ الگ چیزوں کا وہ استعمال کر رہا ہے، مگر جس چیز کا اس کو استعمال کرنا چاہیے وہی وہ اپنے استعمال میں نہیں لا رہا ہے، جس کو لے کر کے یہ بگڑا ہوا دل، جس کی بنیاد کے اوپر پورے سماج اور سوسائٹی کے اندر خرابیاں پیدا ہو رہی ہے، اس کی اصلاح ہونے کا نام نہیں لیتا ہے۔ بات تھوڑی اوپر کو لے جا رہا تھا، لیکن اب آ جائیے ایک دم تھوڑے نیچے کی طرف۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے علماء اسلام اس مسئلے کو ہم سب کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں بھی چاہیے کہ اس کو سمجھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے ہم کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کچھ بن سکتے ہیں، کچھ نہیں بن سکتے، ورنہ یا ہم اس دنیا میں آنے کا صحیح مقصد پورا کر سکتے ہیں، ورنہ ہم اس دنیا میں آنے کا اپنا صحیح مقصد کسی بھی صورت میں پورا نہیں کر سکتے۔ بات دراصل یہ ہے کہ دل کی دنیا میں ہم نے اپنے یقین کو ختم کر دیا ہے، دل کی دنیا میں ہم نے اپنے ایمان کو کھو دیا ہے، دل کی دنیا کے اندر ہم نے انسان کی محبت کو ختم کر دیا ہے، دل کی دنیا کے اندر ہم نے اپنے خدا کے خوف کو ہم بھول چکے ہیں، اور اسی دل کی دنیا کے اندر ہم اپنے خدا کی محبت اور اپنے پروردگار کی معرفت اور اس کی پہچان کو بھول چکے ہیں۔ اسی دل کی دنیا کے اندر انسانیت کا جو درد ہونا چاہیے، انسان اور انسانیت کے تئیں جو پیار ہونا چاہیے، اور انسانیت کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کے کام آ جانے کے جو جذبات ہونے چاہیے، وہ درد اور وہ جذبات اور وہ اسپرٹ آج ہم کھو چکے ہیں اور گم کر چکے ہیں۔ اور ظلم یہ ہے، ستم بالائے ستم یہ ہے، حد یہ ہو چکی ہے کہ ان سب چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، انسانیت کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے، انسانیت کا پیار حاصل کرنے کے لیے، اپنا یقین، کھویا ہوا یقین پانے کے لیے، اور یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جو ہمارا ایمان ہے،
जो किसी न किसी दर्जे में हमसे रुखसत हो रहा है, उसको हम दोबारा हासिल करने के लिए वहां भटक रहे हैं जहां पर हमने इसको खोया ही नहीं है। एक अकल की बात है, कुदरत का एक अटल फैसला है, लॉजिकली बात भी यही है कि चीज जहां गुम होती है वहां तलाश की जाती है, लेकिन अगर चीज जहां गुम हुई वहां तलाश करने के बजाय किसी दूसरी जगह के ऊपर इंसान तलाश करने के लिए निकल पड़ता है, जिंदगियां खपा देता है और बेहतर से बेहतर वक्त को वो जाय कर देता है, मगर अपनी खोई हुई चीज को वो किसी भी सूरत में पा नहीं सकता है। जनाब, एक चीज अगर हमारी गुम हो जाए और घर के बाहर गुम, घर के अंदर गुम हो जाए और घर के तमाम अफराद मिलकर के उसको घर के बाहर तलाश कर रहे हैं और उनसे जब पूछा गया कि जनाब क्या चीज तलाश कर रहे हो, हमारे एक बहुत ही कीमती चीज गुम हो गई थी जिसको हम तलाश कर रहे हैं, पूछा गया कि कहाँ गुम हो गई थी, तो कहा कि वो तो घर के अंदर गुम हो गई थी। पूछा गया कि फिर बाहर क्यों तलाश कर रहे हो, कहा घर के अंदर अंधेरा बहुत है और बाहर रोशनी और उजाला बहुत है, इसलिए हम उजाले और रोशनी के अंदर इस चीज को तलाश कर रहे हैं। ये कितनी कह लीजिए कि अहमकाना और बेवकूफाना बात कही जाएगी उन इंसानों की कि चीज घर में गुम हो गई है और तलाश हम बाहर कर रहे हैं, और बहाना ये बताया जा रहा है कि घर के अंदर लाइट और बिजली का बल्ब नहीं जल रहा है, घर के अंदर रोशनी मौजूद नहीं है और बाहर को सूरज की रोशनी है और उस रोशनी के तले हम जो है अपनी चीज को तलाश कर लेंगे। ये इंसान सुबह से तलाश करता है, शाम हो जाती है, गुरूब हो जाता है, अंदर भी अंधेरा और फिर बाहर भी अंधेरा हो जाता है, चीज को तलाश नहीं कर पाता है, बेचैन हो जाता है और रातों की नींद उसकी खराब हो जाती है। कुछ ऐसा ही हमारा हाल हो चुका है कि दिल के अंदर हमने अल्लाह तबारक व तआला की जात का यकीन रखा था जो खो चुके हैं, और दुनिया के बाहर, दिल के बाहर उसको तलाश कर रहे हैं। अल्लाह का खौफ जो दिल के अंदर था यही गुम हो गया था, मगर हम उसको तलाश करने के लिए बाहर निकल रहे हैं। हम अपनी अजमत रफ्ता यानी कि हम हमारा पुराना मकाम और मर्तबा जो हमको कहीं से मिला था अपने दिल के अंदर हम खो चुके हैं और तलाश करने के लिए बाहर निकल पड़े हैं। कहाँ तलाश करने के लिए निकले? हम निकले हैं तो सियासत के मैदानों के अंदर तलाश करने के लिए निकले हैं। हम निकले तो पार्लियामेंट के बड़े बड़े ईवानों के अंदर हम इसको तलाश करने के लिए निकले हैं। हम लेजिस्लेटिव असेंबलियों की दुहाइयां दे दे करके कहते हैं कि हमारी चीज गुम हो गई है, वो आपके पास है। अरे भाई, न दुनिया की किसी असेंबली के अंदर हमारी चीज रखी हुई है, न दुनिया की कह लीजिए कि कोई पार्लियामेंट में हमारी चीज रखी है, न दुनिया की यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े अपर हाउस और ईवानों के अंदर ये चीज रखी हुई है। याद रखो, किसी कुतुबखाने के किसी गोशे के अंदर ये चीज जो हमारी गुम हो चुकी है नहीं रखी हुई है, वो तो वही गुम हो गई थी जो हमारे दिल के अंदर है। इसी दिल के अंदर जरा एक मर्तबा तलाश करके देखो, वो चीज वही मिलेगी। मगर बात यह है कि वो ईमान का नूर और ईमान का जो बल्ब दिल के अंदर जलना चाहिए, वो दिल के अंदर न जलने की बुनियाद के ऊपर हमारा दिल एकदम से गोया के तारीख हो चुका है, उसके अंदर एकदम से अंधेरा सा छा गया है। तो उस घर वाले की तरह हम ये समझ रहे हैं कि चीज घर में गुम हो गई थी मगर घर में बल्ब नहीं जल रहा है, तो वहां तलाश करने से क्या फायदा, लेकिन बाहर तलाश करने से भी कोई फायदा नहीं। दोस्तों, जरूरत है आज भी इस बात की कि अपने दिल के अंदर दोबारा ईमान के चिराग को जलाया जाए। ये बात लिखने वालों को लिख लेनी चाहिए, सुनने वालों को सुन लेनी चाहिए, नोट करने वालों को नोट कर लेनी चाहिए कि ये चीज जो हमारी गुम हुई है ये मिलेगी तो दामन मुस्तफा में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। दामन मुस्तफा को पकड़े बगैर हमारी गुमशुदा चीज कहीं नहीं मिल सकती, कहीं नहीं मिल सकती। जब तक कि हम इस चीज को हासिल नहीं करते हैं, हमारी ताकत से हमें कोई फायदा नहीं, हमारे असबाब और हमारे वसाइल से हमें कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। हमारी किसी भी ताकत से हम कितने ही उरूज और बुलंदी के ऊपर पहुंच जाए, हम बड़े से बड़े साइंटिस्ट बन करके अफलाक और आसमानों के ऊपर और खगोल शास्त्र से गोया कि हम एक बहुत बड़ा वाफिर मिकदार का हिस्सा भी हासिल कर लें, मगर इसके बावजूद भी जहां से मैंने बात शुरू की थी, इस दुनिया के बिगाड़ को हम खत्म करना चाहे तो नहीं कर सकते, कुछ भी हो जाएगा। हम ये बात डंके की चोट कहते हैं, सिर्फ अपनों से नहीं,
परायों से भी कहते हैं, सिर्फ अपनों से नहीं उनको भी कहते हैं जो हमसे अपने आप को दूर रखते हैं, या कह लीजिए कि अपने और हमारे दरमियान में एक बहुत बड़ा डिस्टेंस रखे हुए हैं, उनसे भी हम ये बात अलल ऐलान कहते हैं, डंके की चोट कहते हैं, कहनी चाहिए, कहनी पड़ेगी, इस वजह से कि हमारा और आपका ये फरीदा है। हम जिस कौम, हमें जो कौम बनाया गया है, हमें उम्मते मुहम्मदिया बनाया गया है, उम्मते मुहम्मदिया का ये तशख़्ख़ुस है, उम्मते मुहम्मदिया का कह लीजिए कि ये सिंबल है, उम्मते मुहम्मदिया का ये प्रतीक है कि वो उन लोगों को वो बातें बताए जिन लोगों को उन बातों की जरूरत है। इसलिए कि नहनु उब्बतुन दाऊद, हम तो दाई कौम बना करके इस दुनिया के अंदर बर्पा किए गए हैं। हमारा तो एक मिशन है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मैन ऑफ विजडम थे, जहां वहां मैन ऑफ मिशन भी थे, मैन ऑफ विजन भी थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आपका एक मिशन, आपका एक विजन, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमतों का आलम ये था कि आप इस दुनिया के अंदर दुनिया इंसानियत को वही देना चाहते थे जिसकी मैंने अभी बात की, और वो ये थी खुदा की जात का मुकम्मल यकीन, खुदा की जात के ऊपर मुकम्मल ईमान, इंसानों की मोहब्बत और इंसानों से इंसानियत के नाते मोहब्बत। ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अहम चीज़ है। इंसानों से मोहब्बत माल की बुनियाद पर भी हुआ करती है, इंसानों से मोहब्बत खौफ की बुनियाद के ऊपर भी हुआ करती है। इंसानों से मोहब्बत इसलिए भी लोग करते हैं कि अगर इनसे मोहब्बत नहीं करेंगे, इन्हें मोहब्बत का सलाम नहीं करेंगे, इन्हें मोहब्बत का सैल्यूट नहीं लगाएंगे, तो ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। मेरे अल्फाज पर ध्यान दीजिए, आका की सीरत को खंगाल करके देख लीजिए। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुक़द्दसा का पूरा निचोड़ जो एक सतर में नहीं बल्कि एक वर्ड और एक शब्द में बयान किया जा सकता है, वो ये कि आका ने इंसानों से मोहब्बत करने के लिए सिखलाया इंसानियत की बुनियाद के ऊपर। चाहे उससे हमें नुकसान पहुंच रहा हो कि न पहुंच रहा हो, चाहे हमारा उससे माल का ताल्लुक हो के न हो, चाहे हमारा उससे कोई रिश्ता हो या न हो, बस एक रिश्ते की बुनियाद के ऊपर। यहाँ पर सिर्फ एक ही रिलेशनशिप काम कर रही है, और यहाँ पर एक ही रिलेटिव्स को दूसरे अल्फाज के अंदर कहा जाए तो एक ही रिश्तेदारी को देखा जाता है, और वो रिश्तेदारी है इंसानों से मोहब्बत इंसानियत की बुनियाद के ऊपर, मानव से मोहब्बत मानवता की बुनियाद के ऊपर, इंसानों से मोहब्बत ह्यूमनिटी की बुनियाद के ऊपर। ये नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि उनको वो चीज़ दे दी जाए और उनके सामने उस चीज़ को बयान कर दिया जाए, उनको उस चीज़ से परिचित कर दिया जाए, उनको उन चीज़ से मुतारफ करा दिया जाए कि जिसकी बुनियाद के ऊपर वो इस दुनिया में इंसान बनकर के जिंदगी गुजारे और इस दुनिया के इंसान बनकर के अबदुल आबाद आखिरत की जिंदगी के अच्छे और भले इंसान बन जाए। ये उम्मते मुहम्मदिया के एक एक इंसान का अहम तरीन फरीजा है। दावत ये हमारा अहम तरीन फरीजा है। दावत अपने दोनों मैदानों के अंदर, ये बात मैंने गुज़िश्ता जुमा भी वहां कही थी, यहां भी दोबारा दोहरा देता हूं, दावत अपने दोनों मैदानों के साथ एक दावत का काम तो हम अपने तबलीगी जमात के प्लेटफार्म के जरिए अंजाम दे रहे हैं, और एक वो दावत जो दावत हजरात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने पहले नंबर के ऊपर दी थी, जिसको दावत इलल ईमान कहा जाता है। लोगों को ईमान की दावत देना, लोगों को यकीन की दावत देना, लोगों को खौफे खुदा की दावत देना और अल्लाह के एक होने की दावत देना। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते आली के ऊपर ईमान लाना और आपकी रिसालत को तस्लीम करना, आपके मुनसबे नबुवत को मान लेना और आपको आखिरी नबी, संदेशक और पैगंबर और अपना अच्छे से अच्छा उपदेशक मान करके जिंदगी गुजारने की दावत देना, ये हम सब मुसलमानों का अहम तरीन और सिर्फ अहम तरीन ही नहीं बल्कि संगीन फरीजा है। इस फरीजे की अदायगी के बगैर हम उम्मते मुहम्मदिया कहे जाने के लायक और काबिल नहीं। ये सोचने की चीज है, इसलिए कि एक रिवायत में जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल अदबुल मुफरद के अंदर नकल फरमाई है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि एक बंदा रोजे क़यामत जब अपने परवरदिगार के हुजूर चला जाएगा, कम मिन जारिन मुतअल्लिकुन बिजारिही, कुछ पड़ोसी खड़े हो जाएंगे रब तबारक व तआला के सामने और वो पड़ोसी अपने पड़ोसी को पकड़ करके खड़े हो जाएंगे और यूं शिकवा और शिकायत करेंगे, या रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, हादा अगलक बाबहू,
ये वो मेरा पड़ोस है जिसने अपना दरवाजा मेरे लिए बंद कर रखा था। हम समझते होंगे कि खाने पीने के लिए बंद कर रखा होगा, पानी के लिए और अनाज और गल्ले के लिए बंद कर रखा होगा। अल्फाज नबुवत के ऊपर गौर कीजिए। आप अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं गोया कि ये चीजें तो इंसानियत के नाते करनी ही करनी है, मगर एक और अहम तरीन चीज है जो हमसे नहीं हो सकी, जो जिसकी बुनियाद के ऊपर रोजे क़यामत वो पड़ोसी खड़ा होकर के उस पड़ोसी को पकड़ेगा और अपने परवरदिगार से यूं शिकायत करेगा, ए मेरे परवरदिगार, हादा अगलक बाबहू, ये वो इंसान है जिसने मेरे लिए अपने घर के दरवाजों को बंद रखा था। क्या हुआ जनाब, आप उसने अपने घर के दरवाजों को आपके लिए बंद रखा था? कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, वमनअ मअरूफहू, ये वो इंसान है कि जिसने अपनी भलाई, अपने पास एक हिदायत थी, अपने पास एक ईमान की दौलत थी, अपने पास एक यकीन की दौलत थी और अपने पास अल्लाह के खौफ पैदा करने वाली एक दौलत थी, इस दौलत को मुझ तक पहुंचाया ही नहीं, हमेशा हमें इसके लिए उसने अपने घर के दरवाजों को बंद रखा। ये रोजे क़यामत एक पड़ोसी एक दूसरे पड़ोसी को पकड़ करके खड़ा रहेगा। दोस्तों, हम आपस में भी पड़ोसी है और जिस कौम के साथ हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं वो हमारी पड़ोसी कौम है। कल क़यामत के दिन ये नन मुस्लिम तबका मुझे और आपका गिरेबान पकड़ करके रब तबारक व तआला के हुजूर यौमल क़ियामा, आका फरमाते हैं अल-अदबुल मुफ़रद में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस रिवायत को नकल फरमाया है कि मुतअल्लिकुन बिजारिही, वो अपने पड़ोसी को खूब चिमट करके पकड़ेगा, छोड़ेगा नहीं वहां पर। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिकायत कर दी और मसला खत्म हो गया। रब तबारक व तआला का दरबार होगा और ये खूब चिमटेगा, इसलिए कि ये डे ऑफ जजमेंट, उसे ये बात मालूम हो जाएगी कि अब जन्नत और जहन्नम के फैसले होने वाले हैं। हाँ, ये बात मालूम हो जाएगी कि इसको हमेशा की जन्नत मिलने वाली है और हमें तो हमेशा की दोज़ख मिलने वाली है। उस मौके के ऊपर ये बंदा, अल्लाह का ये बंदा खड़ा हो जाएगा और कहेगा, ए मेरे परवरदिगार, इसने तो अपना दरवाजा बंद कर लिया था। क्यों बंद कर लिया था? उसके पास एक मारूफ था। मारूफ उलमा जानते हैं उसका पहला मिस्ताक हिदायत है। उसके पास हिदायत का सामान था, मेरा था, लेकिन उसने मुझे नहीं पहुंचाया है परवरदिगार। मुझे बताओ मुसलमानों, इस रिवायत के जरिए नबूवत ने मुझे और आपको क्या पैगाम अता फरमाया? अरे वो 313 वाला मसला भी अगर आप याद रखें और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सजदा रेज़ होकर के रब तबारक व तआला के हुजूर वो जो जुमला इरशाद फरमाया था वो बतला रहा है। क्या कहा था? अल्लाहुम्मा हाज़िहिल इसाबा, ए परवरदिगार, ये एक छोटी सी जमात है, अगर आज ये छोटी सी जमात दुश्मनों के मुकाबले के अंदर काम आ गई और वो नहीं बच पाई तो ये परवरदिगार, इस रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। आका ने जुमले तो ये इरशाद फरमाए, लेकिन अगर अब डीपली इसकी स्टडी की जाए और इसका अभ्यास किया जाए, ये बात सामने आ जाती है। आका यूं कहना चाहते हैं कि 313 में का एक एक फर्द दाई है। ए परवरदिगार, अगर ये फर्द बाकी नहीं रहा तो तेरे कलमे की दावत देने वाला क़यामत तक कोई बाकी नहीं रहेगा। इससे ये बात साबित होती है कि 313 को बचाया गया, इस बुनियाद के ऊपर बचाया गया कि वो दाई थे, दावत को मिशन बनाने वाले थे। बस यही सिलसिला हम तक पहुंचाए और हमसे क़यामत तक के इंसानों तक पहुंचेगा। इससे भी ये बात साबित होती है कि उम्मत का अहम तरीन फरीदा यही है कि वो दोनों दावत के मैदानों के अंदर, मेरे अल्फाज पर ध्यान दीजिए, दोनों दावत के दोनों मैदानों के अंदर, यानी दावत इलल ईमान के लिए भी तैयार हो जाएं और दावत इलल इस्लाम वल अहकाम के लिए भी तैयार हो जावें। तबलीगी जमात के प्लेटफार्म से भी वो दावत का काम करेंगे और उसके ऊपर के प्लेटफार्म से भी जब भी जरूरत पड़ेगी और हर वक्त जरूरत है, ये दावत का काम करेंगे। और जब तक ये करेंगे, ये उम्मत मुहम्मदिया कहे जाने के लायक भी है और कहे जाने के काबिल भी है और उन्हें ये हक भी है कि उन्हें उम्मत मुहम्मदिया कहा जाए। और अगर ये काम वो नहीं कर सकते हैं और नहीं कर रहे हैं तो दोस्तों माफ कीजिए मुझे, हमें हक नहीं है कि हम ये कह सके हैं, हम ये कह सकें कि हम नबी पाक अलैहिस्सलाम की वो प्यारी और लाडली उम्मत है जिनके द ग्रेट उम्मत होने का नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़बान मुबारक से एक सर्टिफिकेट दिया है और खुद कुरान मुक़द्दस के अंदर जिब्राइल के वास्ते से क़ल्ब मोहम्मद के ऊपर उतार करके क़यामत तक की इंसानियत को समझा दिया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम ही बेहतरीन उम्मत हो, तुम ग्रेटेस्ट हो।
तुम ही सबसे महान हो, तुमसे बढ़कर महान कोई नहीं हो सकता है, तुमसे बढ़कर के बेहतर और कोई हो नहीं सकता। लेकिन इस सिफत के साथ जब तक कि तुम मुत्तफिक नहीं होते हैं, वो सिफत यह है कि तुम दावत का काम करना शुरू कर दो। तुम भलाई को लेकर के गलियों में निकलो, तुम भलाई को लेकर के मोहल्लों में जाओ, तुम भलाई को लेकर के मुल्कों के अंदर घूमो। अरे पता चल जाए कि जंगल में खुदा का फलाना बंदा जिंदगी गुजार रहा है। उम्मत मुहम्मदिया का ये फर्ज बनता है कि वो जंगल के उस इंसान के ईमान की और उसके हिदायत की फिक्र को लेकर के जाए। इसलिए कि हजरत सहाबा किराम ने मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा को अपनी दावत का आखिरी कह लीजिए और लास्ट डेस्टिनेशन नहीं बनाया था। इन हजरात ने अफ्रीका के जंगलों को रौंदा है। और आप अगर देखें तो अफ्रीका के ये जितने भी मुल्क पाए जा रहे हैं, जिसके टॉप के ऊपर इजिप्ट और मिस्र हैं, आप वहां से सर्वे करना शुरू करें और अफ्रीका के एकदम नीचे आकर के आप देखें, यहां जो इस्लाम फैला है वो हजरत सहाबा किराम ने मक्के और मदीने को छोड़ा और वहां जाकर के दावत इलल ईमान और दावत इलल इस्लाम दी है। और तब जाकर के अफ्रीका के अंदर और अफ्रीका के तमाम ममालिक के अंदर ये ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद हुई है। बुजुर्गों, आखिरी बात कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। मैं और आप जिस मुल्क के अंदर जिंदगी गुजार रहे हैं, यहां मुसलमान बनकर के सिर्फ नहीं, यानी इतना मुसलमान बनकर के नहीं कि अल्लाह और उसके रसूल की जात पर हमारा ईमान है और अल्लाह और उसके रसूल के वो फराइज और वो अहकामात के दायरे में रह करके हमें जिंदगी गुजारना है। बेशक इतना मुसलमान तो हर एक को बनना ही बनना है, लेकिन याद रखो जिस मुल्क के अंदर हम और आप जिंदगी गुजार रहे हैं, मुख्तलिफ कौमें इस मुल्क के अंदर बसती हैं, मुख्तलिफ तहजीबें और संस्कृतियां और मुख्तलिफ कल्चर के लोग इस मुल्क के अंदर बसते हैं। यहाँ इस्लाम और मुसलमानों के करने के काम का दायरा बहुत ज्यादा वसी हो जाता है। यहाँ हमें जहाँ दावत से काम लेना है, यहाँ हमें इल्म के दीप भी जलाने हैं, यहाँ हमें माशियात, इक्तिसादियात और इकोनॉमिकल मैदानों के अंदर भी काफी तरक्की करनी है और उससे बढ़कर के एक सियासी प्लेटफार्म भी हमें तैयार करना है। ऐसी सियासत कि जिस सियासत का मकसद ये ना हो कि हमको मौका मिल जाए तो हम जो है अपने लिए सब कुछ कर ले। नहीं नहीं नहीं, एक ऐसी सियासत का प्लेटफार्म और मैदान भी इस मुल्क में रहते हुए तैयार करने की जरूरत है कि जिसके मकासद बहुत आला हो, जिसका मकसद और जिसका विजन कुरान और हदीस से हासिल किया गया हो और उस मिशन, इस विजन और इस टारगेट और इस हदफ को हासिल करने का जो तरीका भी अपनाया जाए वो तरीका भी ऐन कुरान और हदीस के मुताबिक हो। तो दावत का मैदान हमारे लिए इस मुल्क के अंदर सबसे अहम है। दूसरे नंबर के ऊपर तालीम का मैदान सबसे अहम है। नबी फरमाते हैं बुइस्तु मुअल्लिमा, मैं मुअल्लिम बना करके भेजा गया हूँ, मैं इल्म को तकसीम करने के लिए भेजा गया हूँ, मैं इल्म की इशाअत के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा गया हूँ। हर तरह का इल्म जो इंसानियत के काम आ जाए, जो मानवता के काम आ जाए, जो इंसानों के काम आ जाए और इंसानों के वास्ते से दूसरी मखलूक को भी वो काम आ जाए, वो जो जानवरों को भी काम आ जाए, वो चूंटियों और छोटे छोटे चरिंद और परिंद को भी वो इल्म काम आ जाए। ऐसे इल्म की इशाअत के लिए मुझे इस दुनिया के अंदर सिर्फ भेजा ही नहीं गया, मुझे तो बर्पा किया गया है। हाँ, हमको बर्पा किया गया, मतलब यह है कि हम मौजों की तरह उछलेंगे, जाएंगे और लोगों की प्यास छिपाएंगे। ये नबूवत का असल मिशन है जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी जबान से भी बयान फरमाया। खुद रब्बुल आलमीन ने भी नबी को बतलाया, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ए नबी तुम्हारा काम यह है कि तुम मैन ऑफ एजुकेशन होने के साथ साथ मैन ऑफ विजडम हो। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तुम कुरान की तालीम दोगे और तुम हिकमत, दानाई और लॉजिक की तालीम भी दोगे। तुम्हारी जबान से निकलने वाले कलिमात से साइंस भी टपक रहा होगा, भूगोल भी टपक रहा होगा, खगोल भी टपक रहा होगा और एक फजा और कह लीजिए कि पॉल्यूशन से ताल्लुक रखने वाले जितने भी अहकाम हो सकते हैं वो भी नबी की जबान से टपकेंगे। आप इसकी स्टडी करें, इसका पूरा अभ्यास करें। हम इस बात को इसी मस्जिद के इस मिंबर से कहना चाहते हैं कि नबूवत ने एक भी चीज नहीं छोड़ी, इस बुनियाद के ऊपर कहा कि मेरी कौम और मेरी उम्मत दावत है जिसकी दावत के अंदर हर चीज पाई जाती है। ये कोई अधूरी या कोई एक मैदान की चीज नहीं या कोई एक प्लेटफार्म की चीज नहीं, यहां वो चीज मिलेगी जिसकी इंसानियत को जरूरत है। यहाँ हर चीज मिलेगी, हर चीज मिलेगी।
कोई सेक्शन हमने ऐसा नहीं छोड़ा है कि जो हमारे पास न हो। तो यहाँ हमें पहले नंबर पर दाई बन करके जिंदगी गुजारना है, दूसरे नंबर के ऊपर दोनों तरह के एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी कुरान और हदीस को देते हुए सेकंड नंबर के ऊपर हर तरह के एजुकेशन को फरोग देना होगा और उसको भी प्रोग्रेस करना होगा और उसको भी आगे बढ़ाना होगा, उसको भी तरक्की देना होगा, उस बात में और उस मैदान में भी प्रगति करनी है। और तीसरे नंबर पर हमारा भी एक इकोनॉमिकल सिस्टम होना चाहिए, हमारा भी एक इक्तिसादी और आर्थिक सिस्टम होना चाहिए। मेरी कौम का कोई फर्द भिखारी बनकर के जिंदगी न गुजारे। हाँ, उसको इतनी भीख दे दी जाए कि उस वक्त वो अपनी जरूरत को पूरी करे और ये एहसास पैदा हो जाना चाहिए उसको कि कब तक ये मैं भिखारी की जिंदगी गुजारता रहूंगा। ये मेरी कौम के ऊपर बदतरीन दाग है, एक बदनुमा दाग है। वो कौम जिस कौम के अंदर ज़कात जैसा इंसानियत और इंसानियत की हमदर्दी के नाते तैयार किया जाने वाला एक बेहतरीन फॉर्मूला हो और उस कौम के अंदर से भिखारीपना खत्म न हो जाए, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है। आप देखें तो सही, क्या है किसी कौम के अंदर इंसानियत और हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर ताउन करना और मदद करना। याद रखे, कौम के मालदारों को मैं ये बात कह देना चाहता हूं, बिला खौफे लौमते लाइम ये बात कहना चाहता हूं, इसलिए कि जिस बात पर मुझे शरह सद्र हो जाता है, कसम खुदा की इस बात में मैं किसी की परवाह किए बगैर ये बात कह देता हूं। कौम के मालदारों को चाहिए कि वो अपनी कौम के गरीब अवाम का ख्याल रखे, मगर साथ में इस बात को भी उनको समझाए और ये एहसास दिलाए, इतनी हसासियत और इतनी संवेदनशीलता और इतनी सेंसिटिविटी इनके अंदर पैदा कर देनी चाहिए कि जनाब आज तो मैं आपकी ये जरूरत पूरी कर रहा हूं, लेकिन आइंदा कल मैं तुझे ऐसा देखना चाहता हूं जैसा आज मैं हूं। जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आज देने वाला हूं, तू भी कल देने वाला बन जाए। इसलिए कि इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने बराबर सलाहियतें देकर के भेजा है। बस बात इतनी है कि कोई एहसास कमतरी और लघुता ग्रंथि में मुब्तला होकर के अपने आप को यह समझ बैठता है कि मैं गरीब हूं और वो मालदार है। दोस्तों नहीं, और कौम के गरीबों से और मोहताजों से भी ये बात कह देना चाहता हूं कि तुम्हें भी चाहिए कि अपनी जरूरत के मुताबिक अगर किसी से ले लिया है ले लीजिए, लेकिन आइंदा इस बात की फिक्र कीजिए कि मुझे अपने पांव के ऊपर खड़े रह करके जिंदगी गुजारना है। इसलिए कि मेरा मजहबी स्टेटस ये है, मेरा मजहबी मकाम और मर्तबा ये है कि हम देने वाले हैं, हम तकसीम करने वाले लोग हैं, हम सिर्फ लेने वाली कौम नहीं है। हमारा तो नबी तो फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम, मैं तो तकसीम करने वाला हूं, माल भी तकसीम करूंगा, एजुकेशन भी तकसीम करूंगा, अखलाक भी तकसीम करूंगा, तहजीब और कल्चर भी मैं तकसीम करूंगा, संस्कृति को भी मैं तकसीम करूंगा। हर जगह पर मेरा आका कहता है इन्नमा अना कासिम, मैं तो सिर्फ तकसीम करने वाला हूं, बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूं। तो सिर्फ लेने वाले न बने, देने वाले भी बनिए, सिर्फ पस्त रह करके नहीं बल्कि ऊंचे उठ करके जिंदगी गुजारने वाले भी बने। दुआ करता हूं। और चौथी चीज, अच्छा और बेहतरीन सियासी प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जाए। ये वो चार चीजें हैं जो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में बसने वाले मुसलमानों के लिए खुसूसन और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए उमूमन इन चार चीजों को बहुत कुछ हद तक अपनाने की जरूरत है। अगर ये चीजें नहीं अपनाई जा रही है तो समझ लीजिए कि इस मुल्क में तो खुसूसन हमारा मुस्तकबिल और हमारा भविष्य इंतहाई खतरनाक है, जिसकी दस्तक हमारे कानों तक पड़ चुकी है, जिसकी आवाजें और इसकी खतरनाक सदाएं हमारे कान के पर्दों को चाक करके दिमाग को तो हिला चुकी है। बस बात इतनी सी है कि कल्ब और दिल का कनेक्शन दिमाग के साथ हो जाए और दिल के अंदर ये हकीकत उतर जाए। अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कही सुनी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अर्ज़ानी नसीब फरमाए। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह।